Good morning, students. I hope you all are doing well. Welcome back to the online class of computer. Today we will study chapter 6, Introduction to MS Access 2010, part 1. Today's topics are Introduction of MS Access 2010, why MS Access is important, what is DBMS, creating database. A database has 5 different elements. Let's start. First, we talk about the Microsoft Access logo. This is the logo for Microsoft Access 2010. Whenever you open Microsoft Access, this type of logo is seen. Next, we have the introduction of Microsoft Access 2010. Now, what is MS Access? Microsoft Access is an application for creating, managing and formatting data. डेटा को फॉर्मेट करने के लिए Microsoft Access एक एप्लीकेशन है जिससे हम डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं और उसके अंदर हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं. Microsoft Access 2010 is a part of the Microsoft Office 2010 Professional Suite Package. Microsoft Access एक पार्ट है Microsoft Office 2010 का प्रोफेशनल सूट पैकेज का. आपने देखा होगा जब भी हम Microsoft Office को ओपन करते हैं तो Microsoft Office के सारे पैकेजेस ओपन हो जाते हैं, लाइक Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint and another one is Microsoft Access. It is a database management system DBMS. DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मीन्स डेटाबेस को क्रिएट करना. The software helps maintain the database used for organizing large amounts of data. जब भी हमें बहुत ज़्यादा डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है तब हम DBMS का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए. आई होप दिस इज़ क्लियर. नेक्स्ट वी हैव द पिक्चर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो. जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करते हैं तो ऐसी विंडो आती है जिसके अंदर आपके पास अवेलेबल टेम्पलेट्स होती हैं और उसके अंदर ये ब्लैंक डेटाबेस होता है. फर्स्ट ऑप्शन यू हैव टू क्लिक हियर एंड नीचे बॉटम पे राइट साइड पे क्रिएट का ऑप्शन आता है. उससे पहले आप फाइल नेम देंगे अपने डेटाबेस को और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा. दिस इज हाउ यू क्रिएट योर डेटाबेस. आई होप दिस इज क्लियर. Next we talk about why MS Access is important. MS Access important क्यों है? Through example we will see it. Example is your school needs to maintain information about all the students. However, it is difficult to maintain all this information on paper as it requires a lot of space. Also, retrieving the data becomes a tedious job. This data can be efficiently stored and managed in Microsoft Access. So एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि हमें अगर स्कूल के स्टूडेंट्स का डेटा मेंटेन करना है तो मेंटेन करने के लिए अगर हम उसे पेपर में मेंटेन करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी बिकॉज बहुत ज़्यादा डेटा हो जाएगा. तो जब भी डेटा बहुत ज़्यादा होता है तो हमें डेटाबेस की नीड होती है. अगर हमें पेपर के ऊपर किसी स्टूडेंट का डेटा रिट्रीव करना है, फैच करना है, तो हम कैसे करेंगे इतने सारे स्टूडेंट में से किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट का? इट विल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क. सो हम डेटाबेस मेंटेन करते हैं जिससे हम इजीली डेटा को फैच कर सकें किसी भी स्टूडेंट का. सो उसे एफिशिएंटली हम स्टोर करते हैं और उसे मैनेज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की हेल्प से. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट इज DBMS. अभी हमने पढ़ा इट इज़ कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इट इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस. ये डेटाबेस को मैनेज और क्रिएट करने के काम आता है. अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ DBMS आर, कुछ एग्जाम्पल्स हैं DBMS के, लाइक MySQL, Microsoft Access, Oracle, etc. These are all databases. I hope this is clear. Next we talk about creating database. A database is a collection of data or information organized in the form of tables. Database क्या है? Database है collection of data. Data को collect करना और information को tables की form में organize करना. It helps access and update data easily. हम data को access भी कर सकते हैं और उसे update भी कर सकते हैं. A database has 5 different elements. Database के अंदर 5 elements होते हैं. Let's talk about the different elements. A database has 5 different elements. The first one is tables.
Tables are used to store data in the form of rows and columns. You all know कि टेबल के अंदर जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होता है. यू कैन ऐड एंड रीनेम कॉलम्स. आप कॉलम्स को ऐड भी कर सकते हैं और उन्हें रीनेम भी कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज फॉर्म्स. These are used to collect data from the user. You can create different types of forms like admission forms. In Microsoft Access, the user can fill data in the form which is then analyzed and stored in the database. अगर आपने देखा हो ऑनलाइन वेबसाइट्स पे कुछ एडमिशन फॉर्म्स होते हैं, तो एडमिशन फॉर्म्स हम लोग फिल करते हैं तो वी आर दी यूजर्स, और फॉर्म क्या कर रहा है, डेटा को कलेक्ट करता है. तो डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स होते हैं, लाइक एडमिशन फॉर्म्स इज वन ऑफ द एग्जाम्पल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. और यूजर डेटा को फिल करता है जब देन डेटा एनालाइज किया जाता है और उसे डेटाबेस में स्टोर कर दिया जाता है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रिपोर्ट्स. रिपोर्ट्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले द डेटा स्टोर्ड इन डिफरेंट टेबल्स. जो डेटा डिफरेंट टेबल्स में स्टोर्ड होता है उन्हें डिस्प्ले करने के लिए हम रिपोर्ट्स का यूज़ करते हैं. अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रिपोर्ट्स इज अ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस रिपोर्ट. सबसे कॉमन एग्जाम्पल रिपोर्ट्स का क्या है, स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड जो आपको मिलता है स्कूल से. सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ रिपोर्ट्स. आई होप दिस इज क्लियर. Now we talk about the fourth element, that is queries. These are used to see information that meets certain criteria. Queries help करती हैं information को देखने के लिए जो हमारे certain criteria को meet करती हो. You can use queries to answer questions regarding the data stored in a table. जो data table के अंदर store है, अगर हमें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो उसके लिए भी हम क्वेरीज यूज़ करते हैं. यू कैन ऑल्सो यूज़ क्वेरीज टू क्रिएट अ न्यू टेबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल्स. जो एग्जिस्टिंग टेबल्स हमारे पास हैं उनसे हम न्यू टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं क्वेरीज के थ्रू. सो क्वेरीज आर बेसिकली यूज टू फैच डेटा, डिलीट डेटा, टू अपडेट डेटा. हम क्वेरीज यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों के लिए. Next, we talk about fifth element, that is relationships. These help you combine data from two different tables. इसके अंदर हम दो डिफरेंट टेबल्स में से डेटा को कंबाइन करते हैं और उसे यूज़ करते हैं. यू कैन क्रिएट रिलेशनशिप्स अमंग द कॉमन फील्ड्स ऑफ टू टेबल्स. दो टेबल्स हैं, दोनों में अगर कोई कॉमन फील्ड्स हैं या कोई कॉमन कॉलम्स हैं तो उनके अंदर हम रिलेशनशिप्स क्रिएट कर सकते हैं. So I hope all these 5 different elements are clear to everyone. Thank you. Stay safe and stay healthy.